Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Code Spiral with Heather. And in this video and the following ones, we will be covering O-Level CS and ASCS का pseudocode syllabus. So that consists of these topics. These are 9 topics. I know syllabus में एक फर्क तरह की division हुई है, मगर this is what I usually go with. So we start from basics, then we move on to our 2 types of conditional statements, 3 types of loops, 2 arrays, searching and sorting, which we have bubble sort and linear search. By the way, this is applicable for O-Level CS Paper 2 and ASCS Paper 2. P4 के लिए there will be more videos coming, उसमें हम Python में करेंगे. तो उसमें we have other types of sorting and searching. उसके बाद we have our 2 types of subroutines which we're going to make ourselves. इनको हम user defined subroutines भी कहते हैं. Procedures हैं और functions हैं. We have our built-in subroutines. इसके लिए हमारे पास A levels में index होता है और O levels की एक फ़र्क वीडियो बनेगी क्योंकि उसमें थोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क आ जाता है. इसके बाद we have our string handling. उसमें हम traversing discuss करेंगे and we'll attempt some quite hard questions which I've come up with myself. Then we have file handling. ये इसमें काफ़ी basic है. By the way, जो हमारा subroutines का topic है, which will be coming in video 3 or 4 inshallah, that is A levels में it's quite a massive topic. O levels में it's not as major, मगर we will be covering it simultaneously because अगर आपको एक बार O levels में subroutines आ जाएं, A levels में आपको मसला नहीं आता. And it's quite an interesting topic, so you'll like it inshallah. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started with our basics. तो इसमें आपको अपना syntax बताना चाहिए. तो syntax के लिए we have our operators. तो we have our equals to operator. This is basically for comparisons. ठीक है. तो then we have our assigning operator. इसके लिए हम एक arrow use करते हैं. Greater than, less than, और फिर greater than and equals to के लिए we don't use वो underlined वाला, okay? तो इसमें मैंने काफ़ी देखे कि काफ़ी लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं. That is wrong. We use हमारा greater than का sign and then we put an equals next to it. Same for less than equals to. फिर unequals to के लिए कुछ लोग यूज़ पाइथन वाला इस्तेमाल. दैट इज़ रॉन्ग. हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट्स दीज द ग्रेटर देन and less than symbol next to each other. फिर then we have boolean values. This could be anything, मगर कोशिश करो कि जो वो हो कि that's either completely capital या first letter capital. I'm gonna for this session हम full caps के लिए जाएंगे. Then we have our add, subtract, multiply, divide, comment. तो अब O levels के syllabus में we don't have string concatenation, मगर for string concatenation we use ये and वाला symbol. ठीक है. तो इसके बाद we have our logical operators. इसमें we have अपने and, or and not. And is both conditions have to be satisfied, or is one of the conditions or both have to be satisfied, and not is to exclude or invert a condition. ठीक है. तो I'm sorry. ठीक है. तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं with declaration. तो अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ we have multiple types of data in our pseudocode का syllabus. Some of the more basic ones are integer. इसके बाद we have real. हमारे पास string है. हमारे पास character है, इसको हम चार कहते हैं. तो इसके बाद we have date, time, of course we have boolean. That's basically it. तो फॉर डेक्लेरेशन हमारे सिलेबस में बाय द वे अगर आपको कोई कोड प्रिंटेड मिलेगा दैट्स ऑलवेज गोना बी इन करियर न्यू. तो आई एम ऑल्सो गोना बी स्विचिंग टू करियर न्यू एंड आई एम गोना बी स्विचिंग बिटवीन दीज फॉर दीज नोट्स. तो ताकि आपको आराम से पता चल जाए व्हाट इज़ कोड एंड व्हाट इजंट. तो हमारा डेक्लेरेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है समझ लो दैट इज़ डिक्लेयर. फिर यहाँ पर आपका आते हैं वेरिएबल. फिर आपका कोलन के बाद उसकी डाटा टाइप आती है. ठीक है. तो दिस इज इट. तो आपके सिलेबस में है कि अगर आप काफ़ी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो सेम टाइम पे तो यू कैन ऑल्सो ऐड देम इन द सेम लाइन. तो वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 इस तरह करके यू कैन हैव देम इफ देर ऑफ द सेम डाटा टाइप. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ num1, इफ़ आई वांट दैट टू बी एन इंटीजर तो आई कैन डू डिक्लेयर num1
as an integer. डिक्लेरेशन थोड़ी सी आपको समझनी पड़ती है क्योंकि कुछ सवाल आते हैं उनके उनमें मार्क ही डिक्लेरेशन का होता है। तो इफ द एग्जामिनर हैजंट आस्क्ड फॉर डिक्लेरेशन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप कर दो तो सही है, एक्चुअली अच्छा है, मगर ज़रूरत नहीं है। लाइक वाई कंफ्यूज योरसेल्फ जब आपको उसके बगैर मार्क मिल रहा हो। तो इधर मैं ऐड करता हूँ हमारी हेडिंग डिक्लेरेशन की। तो अब हम चलते हैं एक थोड़े बेसिक सवाल की तरफ, वो हम करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, अब नाउ इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू थिंक लाइक ए प्रोग्रामर। आप सबसे पहले एक नंबर लोगे, इसको हम नम वन कह लेते हैं, एन वन कह लो, ठीक है। अब उसके बाद नंबर टू लोगे, फिर यू कैन ऐड दीज टुगेदर, और फिर वो जो रिजल्ट होगा वो आप आउटपुट कर दो अपने यूज़र की स्क्रीन पे, ठीक है। तो we're just gonna do that इधर। तो if I close my annotation menu, मैं इधर आता हूँ, I can go input num1, फिर अगली लाइन पे input num2, फिर I can do sum। अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, आई एम नॉट गोइंग यूज इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल्स टू हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो हम आगे यूज करेंगे लूप्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। मगर जब आप किसी चीज की वैल्यू किसी चीज को असाइन कर रहे हो तो यू ऑलवेज यूज अ लेफ्ट फेसिंग एरो। तो यहाँ पर वी कैन डू नम वन प्लस नम टू। तो हमारे सम में आ गया नम नम वन और नम टू, फिर आउटपुट सम। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रिंट भी यूज़ करते हैं, वो चल जाता है मगर आउटपुट प्रेफर्ड है। और कुछ लोगों का फिर सवाल आता है कि हम इस तरह नहीं कर सकते आउटपुट यहाँ पर नम वन प्लस नम टू। बिल्कुल कर सकते हो, मगर मैं आपकी आदत बनाना चाह रहा हूँ टू स्टोर डाटा, क्योंकि आगे जाके सिनेरियोज में आपको बहुत सहूलत होगी अगर आप इस तरह आउटपुट बस कर देते हो ना, जैसे पहले किया था आउटपुट नम वन प्लस नम टू। तो वो आपका डाटा स्टोर नहीं होता, वो बस आउटपुट हो जाता है एंड देन यू हैव जस्ट दोज टू वेरिएबल्स। तो दैट वो आपको फिर दोबारा से करना पड़ता है उनको सम करके एक वेरिएबल में, तो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। अब एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, येस यू कैन टेक दिस इनपुट ऑन द सेम लाइन, मगर क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करें, आई विल नॉट बी डूइंग दैट। अब फिर हम डिक्लेरेशन करते हैं। अब डिक्लेरेशन के लिए आप एक सवाल में अगर टॉप की कुछ लाइनें छोड़ दो और फिर एंड पे जाके कर लो तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, मगर बाद में ना करना। तो मैंने दो तीन लाइनें छोड़ी, आई कैन गो डिक्लेयर num one, num two, sum as integers। ठीक हो गया। तो नाउ इफ आई रिमूव दीज एनोटेशंस, ये आपके नोट्स तैयार हो गए फॉर आपका बेसिक। अब मैं आपको करवाता हूँ जैसे मेरे टीचर करवाते होते हैं, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो अब अगर मैं डिक्लेरेशन पहले करना चाहूँ तो आई कैन डू डिक्लेयर। मुझे पता है मुझे थ्री नंबर्स चाहिए, नम वन, नम टू, नम थ्री। फिर मुझे इनका सम चाहिए होगा, सम मैं इनको करता हूँ इंटीजर। अब जो मेरी एवरेज होगी उसको मैं ए वी जी, ओ सॉरी, इसको मैं ए वी जी लिख रहा हूँ। अब मैं जब डिवाइड करूँगा इसको बाय थ्री, तो वो हो सकता है कि आ जाए डेसिमल्स में। तो जो डेसिमल नंबर होता है हम उसको रियल कहते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ रियल नंबर। तो सिमिलरली अगर आपको करेंसी का आए तो दैट इज ऑलवेज गोना बी रियल, बिकॉज करेंसी सिलेबस में हमेशा देयर इज अ डेसिमल पॉइंट टू दैट। तो आई कैन गो इनपुट num वन, इनपुट num टू, इनपुट num थ्री। अब आई एम गोना गो फॉर अ वेरी मेथोडिकल अप्रोच, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने अगर ये पढ़ा हुआ है, यू नो कि आई कैन जस्ट डू, क्या आई कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, आउटपुट num वन प्लस num टू प्लस num थ्री ओवर थ्री। मगर मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी आदत बनाऊंगा टू स्टोर डाटा। मैं पहले बनाऊंगा इसका सम। डायरेक्टली भी कर सकते हो कि लाइक एवरेज के अंदर डायरेक्टली स्टोर करके उसको आउटपुट कर दो, मगर दिस इज मोर मेथोडिकल। तो अभी के लिए वी गोना ट्राई दिस, मगर इवेंचुअली आपको आदत हो जाएगी टू अलाउ फॉर टू, आपको अंदाज़ा एक्चुअली हो जाएगा कि मैं कहाँ पर मुझे डाटा स्टोर करने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। तो आई कैन डू num वन प्लस num टू प्लस num थ्री,
and then average में I can store sum over 3, and then I can output iski average. A shorter algorithm for this would just be input num1 plus num2, sorry, input num1, num2, num3, फिर average में I can store num1 plus num2 plus num3 divided by 3, output average. Both of these are fine. I can actually add a comment here. A double slash is commenting. Okay, commenting is basically adding English statements in order to better explain the code. मैं इधर कहता हूँ कि both are acceptable. That's it. Okay. फिर शुरू में I would recommend कि आप you go with the longer code because फिर आपको समझ आ जाएगी कि ओ मैं ये करके ये कर रहा हूँ then I'm doing that. फिर when you're good at it, you go for the shorter code. So that's it for the basics. Now we can move on to हमारे conditional statements. अब conditional statements अगर अच्छा तो अगर if we come to these pre-made notes इधर हमें selection statements या conditional statements के notes मिल जाते हैं तो हमारा format ऐसे ही है if 3 ellipses space then 3 ellipses फिर else if हमारा तभी यूज होगा जब सवाल हो because it's recommended कि आप अगर बहुत ज़्यादा conditions हों you'll only use else if जब आपके पास जब वो सवाल में कहे because ज़्यादातर आप केस ही यूज़ करोगे क्योंकि it's one more efficient and two it's easier for when you have a lot of conditions. तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो ही कंडीशन हैं जैसे इधर मैंने कहा आउटपुट एक्सेस ग्रांटेड अगर पासवर्ड 123 है आउटपुट रॉन्ग अगर नहीं है तो मैंने डिक्लेयर किया कर दिया पासवर्ड एज इंटीजर मैंने उसको कहा आप इनपुट करो पासवर्ड इसमें इंडेंटेशन का थोड़ा मसला है बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट ने ये करके मुझे दिया था तो आई फिक्स दैट अप फॉर यू आप आउटपुट अगर ये इनपुट वाला पासवर्ड 123 है तो आप आउटपुट कर दो एक्सेस ग्रांटेड वरना आप आउटपुट कर दो रॉन्ग तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम तो मुझे लगा नहीं तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि आउटपुट पास अगर मार्क्स है मोर देन 50 अदरवाइज फेल तो हम उसको कह सकते हैं ऑफ कोर्स एक आध लाइन छोड़ के फॉर हमारी डिक्लेरेशन मैं उसको कहता हूँ डिक्लेयर सॉरी मैं उसको कहता हूँ इनपुट मार्क्स इफ मार्क्स ये आप ये केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स यू हैव टू केयर अबाउट कि अगर आप करते हो ये आप कैपिटलाइज करते हो कि नहीं तो आई फील लाइक इट्स इजी अगर आप छोटा रखो मगर अब बड़ा हो गया तो इट्स फाइन इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 देन आउटपुट पास एल्स आउटपुट फेल एंड इफ के मार्क्स एज सच कटते नहीं अगर आप इसको छोड़ दो देन और एल्स के कट जाते हैं मगर आप कोशिश रखो कि आप हमेशा एंड इफ लिखो क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है तो यहाँ पर वी ओनली वर्कड ऑन वन वेरिएबल तो वी आर ओनली गोना नीड वन लाइन वी कैन से डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर तो ये एक हमारा नया कंप्लीट सवाल बन गया तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस थी अगर हमने कहा कि वो फुलफिल होती है तो पास कर दो नहीं तो फेल कर दो Okay, so if we have a question like this, the question says, a teacher has a list of marks he needs to assign grades to. His threshold looks like this. A star के लिए you have 85 to 100, A के लिए you have 75 to 84, B के लिए 65 to 74, etc. तो for this, आप सबसे पहले तो of course एक आध लाइन छोड़ के you would say input mark. फिर इधर I could say अगर mark is greater than 85, greater than or equals to क्योंकि हमारा रेंज इस तरह है तो यहाँ पर आई could do output a star अब क्योंकि मेरे पास और भी कंडीशंस हैं आई वुड गो फॉर माय एल्स इफ अब एल्स इफ के बाद मेरा अगला कंडीशन होगा एल्स इफ मार्क इज ग्रेटर देन 74 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 74 75 सॉरी तो यहाँ पर आई वुड आउटपुट ए फिर देन मेरा एक और एल्स इफ आएगा इसकी इंडेंटेशन आपने ऐसे ही रखनी है इन पे एक वी शेप बनेगा दैट इज व्हाट योर सिलेबस सेज एल्स इफ अगर मेरा मार्क है
mark is greater than or equals to 65, तो आप इसके लिए आउटपुट कर दो, इसके लिए आप आउटपुट करो बी। अगर आपका सिमिलरली 55 से बड़ा है तो आप आउटपुट कर दो सी। अब अगर कुछ इधर से कुछ भी नहीं मैच हो रहा तो आपका कंडीशन जाएगा एल्स पे, जहां पर आप कह सकते हो आउटपुट वर्क हार्डर। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा था कि आपका जो कंडीशन, आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक एंड इफ होता है, मगर फॉर एवरी सक्सेसिव एल्स इफ यू हैव ए सक्सेसिव एंड इफ एज वेल। तो यहाँ पर आपका पहला एंड इफ आ गया, यहाँ पर आपका दूसरा एंड इफ आ गया, यहाँ पर आपका तीसरा आ गया, चौथा, and then your fifth end if to close off your V-shaped indentation. तो यहाँ पर I only worked on one variable which I can declare as mark as an integer. Okay. तो this is a question जो कि एलसीफ का काफ़ी आता है। तो with that we can also move to our case statements and we'll work on this question in case statement as well. अच्छा, तो केस का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह हमारा इफ का था, दैट इज केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अदरवाइज में मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, मगर ये वाला आप लिखोगे जो अगर आपको इधर सवाल है, अनलाइक आपका एल्सिफ जो कि आप लिख दो तो सही है, ना लिखो तो इट्स ऑल्सो फाइन, मगर अदरवाइज आप लिखोगे। मगर जब आप बना रहे हो तब इट्स ऑप्शनल। वी कैन से केस मार्क ऑफ। अच्छा, अब आपके सिलेबस में वैसे आप इसकी दो तरह की दी हुई, यू कैड आल्सो डू केस ऑफ मार्क या केस मार्क ऑफ भी चलता है, मगर इनके सिलेबस में ज़्यादा मेंशन केस ऑफ मार्क के, विल गो फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा मार्क ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 है तो आप ग्रेड में, यहाँ पर आप डायरेक्ट आउटपुट भी कर सकते हो, मगर वही बात, वी वर्किंग ऑन डाटा स्टोरेज, तो ग्रेड में आप स्टोर कर दो ए स्टार। तो दिस इज क्वाइट रिपीटेटिव, तो यहाँ पर यू कैन डू 75, 65, 55, और फिर भी we're gonna use otherwise in this as well। तो ए स्टार, ए, बी, सी, पर यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा तो दिस इज गोना गो टू योर अदरवाइज। अदरवाइज इसमें भी हम इफ की तरह वाली इंडेंटेशन यूज करेंगे कि we're gonna go हाफ आगे। अदरवाइज ग्रेड में डाल दो आप वर्क हार्डर। एंड एंड केस, जैसे एंड इफ था यहाँ पर एंड केस है, तो देन आउटपुट ग्रेड। यहाँ पर वी वर्कड ऑन टू वेरिएबल्स, एक था डिक्लेयर मार्क, वो एक था इंटीजर, और फिर द सेकंड वन वी वर्कड ऑन वाज ग्रेड। अब दिस कुड बी कैरेक्टर, यहाँ चार, अगर यहाँ पर सिर्फ ए बी सी वगैरह होते, मगर यहाँ पर हमारे पास ए स्टार भी है विच इज़ नो लॉन्गर अ कैरेक्टर, क्योंकि इसमें एक सेकंड भी हमारे पास कैरेक्टर आ जाता है, एंड दिस, ये भी एक सेंटेंस है, तो हम इसको कहते हैं डिक्लेयर ग्रेड एज स्ट्रिंग। तो ये हमारा एक 12 लाइन प्रोग्राम बन गया केस स्टेटमेंट के साथ, वर्सेस अ 17 लाइन प्रोग्राम विद नेस्टेड इफ्स। तो अदरवाइज में आप एरर ट्रैप्स भी डाल सकते हो, मगर फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग इट एज मेरा लास्ट कंडीशन। इसके लिए यू कुड हैव अल्टरनेटिवली आल्सो डन, अगर वो इट इज लेस देन 55 तो आउटपुट, आई मीन ग्रेड को आप इनिशियलाइज कर दो एज वर्क हार्डर। तो बोथ ऑफ दोज आर परफेक्टली फाइन, मगर क्योंकि वी नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस, तो वी कैन गो फॉर द अदरवाइज। ओके, सो इफ वी हैव दिस क्वेश्चन, इसमें उसने कहा है कि ask the user to input two numbers and ask the user to input an operation.
1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 division. फिर आउटपुट द रिजल्ट, और ये हमारा आता है एरर ट्रैप, इसको हम कहते हैं एरर ट्रैप. It says कि if the user enters an invalid choice, display invalid operation. तो इसका काफ़ी, I would like you to pause the video now and try this question yourself, and then I'll solve it for you. So here is a perfect solution for a question like this. This would be a 4 to 5 mark question. The first mark would be for this input. Second would be for correct use of the case statement. Third mark would be for the error trap, and the fourth mark would be for the correct matching of the operations. अगर फिफ्थ हो तो दैट वुड बी फॉर आउटपुट, मगर इधर आई वुडंट काउंट दैट एज अ मार्क, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट आउटपुट करते हैं, कुछ लोग उसको एक वेरिएबल में डाल के एंड पे आउटपुट करते हैं. आइदर वे इज परफेक्टली फाइन. मगर वही बात, इफ वी गोइंग फॉर एक डाटा स्टोरेज ओरिएंटेड मेथड, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये इसको एक वेरिएबल लाइक रिजल्ट में स्टोर कर लो, और एंड पे यहाँ पर आप कर दो आउटपुट रिजल्ट. मगर once again, either way is fine.